ଭଲ ଅଛନ୍ତି କି? ଓକେ, ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପୁଣି ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ମହାଶୟଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଏ। ପୁଣି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଉପଦେଶ ଦୃଢ଼ କରି ଧର, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ନାହିଁ, ତାକୁ ରଖ, କାରଣ ତାହା ତୁମ୍ଭର ଡ୍ୟାସ୍ ଜୀବନ। ସମସ୍ତେ କହିବା, ମୋ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ କାହିଁକି ବାକ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହା ହେଉଛି ଆଜିର ଥିମ୍। ଓକେ, ତାମାନେ ଉପଦେଶ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦୃଢ଼ କରି ଧର, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ନାହିଁ, ତାକୁ ରଖ, କାରଣ ତାହା ତୁମ୍ଭର ଜୀବନ। ଆଉ ଏଇ ବିଷୟ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନୀ ସଲମନ ସେଇ ପୁସ୍ତକରେ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି। ତ ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତା ପୁସ୍ତକ 19 ଅଧ୍ୟାୟ 130 ପଦରେ ଯଦି ଦେଖୁ, ତେବେ ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟର ବିକାଶ ଆଲୁଅ ପ୍ରଦାନ କରେ, ତାହା ନିର୍ବୋଧକୁ ବୋଧ ଦିଏ। ବାକ୍ୟର ବିକାଶ ଆଲୁଅ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେତିକି ବିକାଶ ହେବ, କଣ ପ୍ରଦାନ କରେ? ଆଲୁଅ ପ୍ରଦାନ କରେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କହିବା ପାଇଁ ଯିବି ଆଗକୁ, ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ହିଁ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଆଉ ବିଶେଷ ଆଜି ବିଳମ୍ବ କରିବା ନାହିଁ, ଗତ ଦିନ ପରି। ଓକେ, ତ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ସେହି ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଆଲୁଅ ପ୍ରଦାନ କରେ, ବାକ୍ୟର ବିକାଶ ଆଲୁଅ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତାହା ଗୋଟେ ମୂର୍ଖକୁ କଣ କରେ? ବୋଧ ଦେବ। ନିର୍ବୋଧକୁ ବୋଧ ଦିଏ। ଏଇଥିପାଇଁ 129 ପଦରେ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟ ସକଳ କଣ ଅଟେ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରାଣ ତାହାକୁ ପାଳନ କରେ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ କଣ ବୋଲି? ଏକ ଆଲୁଅ ସଦୃଶ୍ୟ, ଆଲୋକ ସଦୃଶ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ଧକାରମୟ ଜୀବନକୁ ଆଲୋକିତ କଣ କରିଥାଏ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଅନ୍ଧକାରମୟ ଜୀବନକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କଣ କରିଥାଏ? ଆଲୋକିତ କରିଥାଏ। ବୁଝିଲେ କି? ତାହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଗୁଡଲି ଝିଅ ଯଦି ଅନ୍ଧକାର ପଥକୁ ଯାଉଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତାହାକୁ କଣ କରିବ? ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଅନ୍ଧକାର ରାସ୍ତାକୁ ନେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ 19 ଅଧ୍ୟାୟ 105ରେ, ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ମୋ ଚରଣ ପ୍ରତି ଆଉ ଆଲୁଅ ଅଟେ। କେଡ଼େ ଆନନ୍ଦର ପଦ, କେଡ଼େ ଅଦ୍ଭୁତ ବାକ୍ୟ ତାହା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆଜି ମୋ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ବାକ୍ୟ କଣ ହେଇପାରେ, ଆଜି ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବା। ମୋ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଆଲୋକ ହେଇପାରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମୋ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଆଲୋକ ହେଇପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜେରେମିୟ 23 ଅଧ୍ୟାୟ 29 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସଦା ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ କି ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ ଓ ପାଷାଣ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡକାରୀ ହାତୁଡ଼ି ତୁଲ୍ୟ ନୁହେଁ। ସୁନାକୁ ନିଆଁରେ ଯଦି ପକାଯିବ, ସୁନା କଣ ହେବ? ସେଥିରେ ଯାହା କଳଙ୍କି ଲାଗିଥିବ ସୁନାରେ, ସେ ସୁନାରେ କଳଙ୍କି ସବୁ କଣ ହେଇଯିବ? ସଫା ହେଇଯିବ। କେବଳ ସୁନା ହିଁ ରହିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ବହୁମୂଲ୍ୟ, ତେବେ ଆମକୁ ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କଣ କରିବ? ଆହୁରି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ କରିବ। ଆହୁରି ଆମଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କଳଙ୍କ ଲାଗିଛି, ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଅସୁଚିତା ଲାଗିଛି, ତାହାକୁ କଣ କରିବ? ପରିଷ୍କାର କରିବ,
अग्नि रे जदि रूपा कि सुना को कौन करा जाए जोड़ा जाए कौन हेब से परिष्कृत हेब। अग्नि द्वारा ईश्वर वाक्य अग्नि स्वरूप आमाने को बहुमूल्य बोली ईश्वर वाक्य कहे आमाने को प्रभु अग्नि द्वारा कौन करिवे परिष्कृत मध्य करि पारंती। ता नेक्स्ट लाइन पढ़ंतु। पाषाण खंड विखंडकारी हातुड़ी तुल्य नुहे। पाषाण अर्थ कौन पत्थर पत्थर को खंड खंड विखंड करिबा हातुड़ी हामर तुल्य बोली ईश्वर वाक्य आम जानी पारुछे कौन बोली ईश्वर वाक्य हातुड़ी तुल्य आमर जीवन केते भी कठोरमय पत्थर सदृश होता आमान को से कौन करिवो से पत्थरमय हृदय को कौन करिवो खंड विखंड करि पारे। ताहा होछि ईश्वरंकर वाक्य। जेते भी कौन हे थांतु पत्थर सदृश कौन हे करि थांतु आपण मानकर हृदय करि थांतु ईश्वरंकर वाक्य कौन करिवो सेई पत्थर सदृश हृदय को खंड विखंड करि पारे। ताहा होछि ईश्वरंकर वाक्य। आज मो निमंते ईश्वरंकर वाक्य आलोक प्रदान करि पारे अग्नि स्वरूप परिष्कार करि पारे पत्थरमय जीवन को खंड विखंड करि पारे। एफिसियो पुस्तक 6 अध्याय 17 पद रे गोटे विषय लिखा जाइछि पुणी परित्राण रूप शिरस्त्राण परिधान कर ओ आत्मा को खड्ग अर्थात ईश्वरंकर वाक्य धारण कर। आज आमे गोटे शिखिबा विषय को ध्यान करुचे। आज मो जीवन रे ईश्वरंकर वाक्य कौन परी कार्य करे आलोक परी कार्य करे ना अग्नि स्वरूप कार्य करे ना हातुड़ी भली कार्य करे ना एठी लिखा जाय कौन बोली खड्ग कि सेठी लिखा जाउची आत्मा को खड्ग। ईश्वरंकर वाक्य दीधार खड्ग ठारू तीक्ष्णतर बोली आमाने जानिचे हाँ कि नाई आपण माने जानिचंती ईश्वरंकर वाक्य गोटे स्वord कौन दुई धार थिबा कौन खड्ग। मु कहया पई चाहे आमान को जीवन रे ध्यान सहित शुणंतु मो जीवन रे जहा भी अनुचित विषय गुड़ा को अच्छी से विषय को से खड्ग कौन करिवो खंडा कौन करिवो काटिबो। मु एबे कहूची मते भी ईश्वरंकर वाक्य काटिबो आपण को मध्य ईश्वरंकर वाक्य काहेकि कारण से दुई धार खड्ग ठारू तीक्ष्णतर आमान को काटिबो जहा जहा मान को जीवन रे कटिबा आवश्यक से विषय को ईश्वरंकर वाक्य रूप खड्ग कौन करिवो काटिबो। ए मन रखिबा माने आमान को जीवन रे ईश्वरंकर वाक्य गुरुत्वपूर्ण इति पाई आमान को जीवन रे जहा भूल अछि अंधकारमय जीवन को आलोकित करिवो। पुणी आमानकर जीवन को जदि कलंक लागिछि अग्नि स्वरूप जळाई कौन करिवो परिष्कार करिवो। हातुड़ी सदृश कठिन हृदय को खंड विखंड करिवो। खड्ग द्वारा आमानकर अनावश्यक जीवन रे जहा अछि ताहा कौन करिवो खड्ग द्वारा काटिबो। जाकब पुस्तक 1 अध्याय 23 ठारू 25 यदि आमे देखिबा तेबे एठारे एपरि लिखा जाए कारण जदि केही वाक्यर कर्मकारी न होई श्रोता मात्र हुए तेबे से दर्पण रे अपना स्वाभाविक मुख दर्शन करुथिबा मनुष्यर तुल्य जेणु से अपना को देखिला उतारे चली जाए। से की प्रकार लोक ता से क्षणी भूली जाए किंतु जे सिद्ध अर्थात स्वाधीनतार व्यवस्था प्रति निरीक्षण करी सेतिरे निविष्ट थाए पुणी विस्फोरणकारी श्रोता मात्र न होई बरं कार्यकारी हुए से अपना कार्य रे धन्य। एही वाक्य द्वारा माने गोटिए विषय जानी पारुजे जे
ईश्वरंकर वाक्य दर्पण सदृश मिरर बोली आमाने जानी पारुछे। देखंतु मो आड़को मु आपण मान को कहया पय चाहे मिरर रे जदी आमाने देखुचे एई वाक्य को संडे सर्विस रे गोटे दिन आमाने ध्यान करिथिले मोर मने अछि पास्टर आज्ञाकर मते मने अछि एई वाक्य आमान को जीवन रे गुरुत्वपूर्ण एइति पय जे ईश्वरंकर वाक्य मो जीवन प्रति की प्रकार आज कार्य करूची जदि कार्य करू नाही तबे सही प्रकार कार्य करि पारे। एठी दर्पण सदृश दर्पण को माने केमति जाउचे जेमति भी जाउचे किंतु सजबाज विशेष करी एबे ए जुग रे मिरर व्यवहार कोन पे करूचंती निज को सजबाज करबा पय हां कि नाही आपण माने मो कथार सहमति अछंती कि देखंतु आ सुनंतु मो कहया पय चाहे जे ईश्वरंकर वाक्य दर्पण सदृश जदि मोहरे गोबर लागे जदि मिरर सामना को आपण माने जिबे मिरर को देखिबे गोबर को न पोछिकी सेमति एका जिबे आपणे अंध हेई थाई पारन मो कहबी नै आउ बळका कथा गोबर जदि लागिछि आज्ञा आपण मिरर को जिबे देखिबे गोबर लागिछि ताहाकु न पोछिकी आउ थरे गोबर लागिछि मोहर जिबे कि आपण ईश्वरंकर वाक्य आमान को जीवन रे कोन सब त्रुटि अछि दर्पण रे जदि आमान को चेहरा को जेमति चेहरा अछि सेमति देखै दिए ईश्वरंकर वाक्य आमान को चरित्र को पठन करबा द्वारा कोन करिताए देखै दिए जे तुमे एई प्रकार वे तो तुम जदि सुंदर अच्छ वाक्य जदि आमान को सुंदर बोली देखाए तबे माने नितांत सौंदर्य अच्छु सुंदर अच्छु आमान को जीवन रे जदि ईश्वरंकर वाक्य कहे तुम जीवन रे गोबर पर किछि गोटे कलंक लागिछि तुमे सेटा परिष्कार कर मो जीवन रे मु जानिछि मते ईश्वरंकर वाक्य रे आमान पठन करूचे पैबिज्य सुनो एपटे गुडलीज्य सुनो सौरभ तांको कार्य करिवे तुमे माने एपटे सुनो ईश्वरंकर वाक्य को आम पठन करुचे आमान को से दर्पण सदृश आमान निजर जीवन को आमान केमिति देखा जाउचे ताहा आमान को देखांते से आमाने देखिला उतारे जदि आमान जीवन को परिवर्तनता नेउनु परिवर्तन करूनु तेबे साधारण गोटे उदाहरण देउथिली मोहरे गोबर लागिथिबो मिरर देखिबा अंध सदृश कोन हेबा न पोछिकी जिबा आज आमाने ईश्वरंकर वाक्य को ध्यान करूचे आमानकर जीवन रे जहा परिवर्तन तार आवश्यक ताहा ईश्वरंकर वाक्य देखाइबा सत्वे मिरर रे आमाने जदि दाढ़ी एमती रखिचे निश्चय एमती रखिचे से अलगा देखैबो कि केमती देखैबो आज्ञा जेमती को सेमती देखैबो आमाने आसिकी आउतरे भाबिबा जे नाही मोर दाढ़ी ठीक अछि जदि एतिकी बढितले मते ठीक अछि आगा भाबुथिबा जेतिकी आवश्यक थारु जदि अधिक हेतिबो मोर कहवा कथा कौन जो देखुवा किसी गोटे दाग लगी किंतु आमान को से दाग देखा जाऊन तेबे आमाने से लोक सदृश खाली देखुवा आमान को जीवन को किसी परिवर्तनता आणु नथिबा आमाने ईश्वरंकर वाक्य को जदि निजर जीवन को दर्पण सदृश सेठी आमाने देखि पारुचे आमाने जानिबा आवश्यक आमान को जीवन रे कौन कौन परिवर्तनतार आवश्यकता रहिछि। ओके नेक्स्ट जीवा एफिसियो 5 अध्याय 26 पद जेपरी वाक्य और जल प्रक्षालन द्वारा से ताहाकु परिष्कार करी पवित्र करंती वाक्य गोटे की सदृश जल सदृश देखंतु मु आपण मानकु कहिबी देखंतु एवं सुनंतु ईश्वरंकर वाक्य जल सदृश जल कौन करि पारे आमान को प्रयोजनीय विषय हे पारे पी मध्य पारिबा जल द्वारा महिला विषय को धौत मध्य करि पारिबा आमाने साधारण भाव रे जल को की प्रकार व्यवहार करूचे पीबा पई व्यवहार करूचे गाधैबा पई व्यवहार करूचे विभिन्न विषय करिबा पई मध्य व्यवहार किंतु एठी कोन लिखा जायछि प्रक्षालन द्वारा से ताहाकु परिष्कार करी पवित्र आमान को जीवन रे
ईश्वरंकर वाक्य जल स्वरूप ही आमान को कौन करबा आवश्यक प्रक्षालन करबा आवश्यक आमानकर जीवन रे आज जहाँ भी कौन लगी किछि किछि महिला अंश लगी आमाने ईश्वरंकर वाक्य जल स्वरूप वाक्य को आमाने निज जीवन रे कौन करबा आवश्यक अवलंबन करबा आवश्यक आउ जल जमती गोटे कौन अपरिष्कार पोशाक को परिष्कार करे आमानकर जीवन को मध्य ईश्वरंकर जल भली जल स्वरूप वाक्य परिष्कार करिबार आवश्यकता रही आमाने ईश्वरंकर वाक्य अनेक समय ध्यान करुचे मु कहबा पई चाहे आज मो जीवन निमंते आज जतिकी विषय माने ध्यान करुचे ताहा परिकार्य करुचे कि ताहा परिकार्य करुचे कि आमाने नितांत जानिबा आवश्यक अनेक लोक माने झुंटी पड़ते कहीं ना मनुष्य जेहेतु से माने झुंटिबे किंतु झुंटी आमाने उठिबा पाई पड़िबो से उठिबा पाई वाक्य आमान को साहाय्य करिबो आमान को प्रभु वाक्य एथि पई ही देइचंदी जे आमान को जीवन रे सेही सब विषय को स्मरण करैबा पाई पुणी सेही सब विषय आमान को जीवन रे अवलंबन करबा पाई आ गोटे नेक्स्ट पद जदि आमाने देखिबा तेबे लोक 8 अध्याय 11 पद लिखा जाय जे दृष्टांतर भाव एही विहन ईश्वरंकर वाक्य विहन ईश्वरंकर वाक्य विहन कहले बुझिले कि बीज बीज कहले बुझिले कि मंजी सेही बीज देखंतु गोटे मंजी जदि गोटे जगह रे व्यवहार करा जाए तेबे से मंजी कौन हुए गछ उठे आ फल फले शाखा हुए अनेक कौन दे छाई मध्य दिए फल मध्य आज मु आपण मान को कहया पई चाहे ईश्वरंकर बीज स्वरूप वाक्य आपण मानकर हृदय रे आपण माने बुणिचंती कि आपण मानक जीवन रे सेही मंजी सेही बीज को बुणिचंती कि जदि बुणिचंती आ गोटे मध्य मु कहया पई चारि गोटी उदाहरण दिया जायछि चारि प्रकार मनुष्य को मध्य बुझाए सेटा सेही बीज जदि आमानक जीवन रे बुणा हेतिबा पोरे सेही बीज अंकुरित हुए अंकुरित होई गछ होई से कौन हुए फल उत्पन्न करे अनेकंक निमंते साहाय्यर कारण हुए तेबे सेही बीज प्रकृत रे आमाने एक आत्मिक जीवन रे अभिवृद्धि हेउतिबा पाई सेही बीज आमानक जीवन रे पड़िछि बोली आमाने जानिबा जदि आमानक जीवन रे वाक्य सुनुचे वाक्य जानिचे किंतु केबे भी को लोकंकर साहाय्य से वाक्य द्वारा हेउ से वाक्य आमान को जीवन रे केबे ही फल पड़ू नाही तेबे आउ तीन गोटी से भूमि सदृश्य माने हेतिबा सही वाक्य आमान को ठारे पढ़ले सुधा माने आउ बढ़ी कि टिके मरी जाउथिबा खूब शीघ्र बढ़ी जाई कि फली परिबा नाही तेणु मु कहबा पई चाहे जे आज मो जीवन निमंते ईश्वरंकर वाक्य की स्वरूप हो जाइछि ईश्वरंकर वाक्य मो जीवन निमंते की स्वरूप होइछि आज आमाने मने रखिबा आवश्यक मु आउ तीन गोटी विषय ही कहबी तापर आउ कहबी नाही यथा संभव शीघ्र सारिबा पय मु चेष्टा करिबी अनेक विषय मध्य आउरी अछि किंतु आजि पय आमाने आउ तीन गोटी विषय रे कोन करिबा सारिबा द्वितीय विवरण 8 अध्याय 3 पद लिखा जाए आउ मनुष्य जे केवल रोटी रे बंचे नाही मात्र सदा प्रभु को मुखरु जहा जहा निर्गत हुए तही रे ही बंचे एहा तुमको जणाइबा पाई से तुमको नम्र क्षुदित करी तुम्भर अज्ञात तुम्भर
ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ଗଣର ଅଜ୍ଞାତ ମାନା ଦେଇ ପ୍ରତିପାଳନ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଜାଣି ପାରୁଛ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଯିଏ ଭୋଜନ କରେ ସେ ଏଇ ଯୋଉ ବଞ୍ଚେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି, ଯେ ଗ୍ରହଣ করে ଲେଖାଯାଇଛି। ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଲେ ମୋ ଜୀବନଦାୟକ ଆହାର। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନଦାୟକ ଆହାର ଅଟେ, ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଆଉ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ପଦ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ତାପରେ ଆମେ ସାରିବା ପାଇଁ ଯିବା ଗୀତ ସଂହିତା ପୁସ୍ତକ 19 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଓ ପ୍ରଚୁର ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅପେକ୍ଷା ବାଞ୍ଛନୀୟ ଓ ଆଉ ମଧୁ ଓ ମଧୁଚାକ ଠାରୁ ସୁମିଷ୍ଟ। ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟ ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ। এইটা ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପ୍ରଥମରେ କଣ ଦିଆଯାଇଛି? ଧନ, ବହୁମୂଲ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଧନ ସ୍ୱରୂପ। ଜାଗତିକ ଧନ ଗୁଡାକ କଣ ଅଟେ? କଣ ଅଟେ? ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ହେଇପାରନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ କୁହାଯାଉଛି। ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ଆମେ କେତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧନ କହୁଛୁ? ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଯେଉଁଠାରେ ଧନ, ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ଧନ କହିବା ତେବେ ମନ ତ ସେଠି ହିଁ ଲାଗିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯଦି ଧନ ହେଇଯିବ ଆମମାନଙ୍କର, ତେବେ ମନ କୋଉଠି ଲାଗିବ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲାଗିବ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଧନ ହେଉ, କେବଳ ଜଗତର ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ତାହା ଧନ ହେବ ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଏକ ଧନ ସାଜିବ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆଜି ମୋ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଲୋକ, ନା ଅଗ୍ନି, ନା ହାତୁଡ଼ି, ନା ଖଡ୍ଗ, ନା ଦର୍ପଣ, ନା ଜଳ, ନା ବୀଜ, ନା ଖାଦ୍ୟ, ନା ଧନ। ଆଜି ଆମେ ନିଜେ ଚିନ୍ତନ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।